You are registered for accelerator. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me loud and clear? All right, so I'm very happy to be back here. Much better. कल college में इतनी तबीयत खराब हो गई कि I had to skip in the middle of the class. Like I think 1 बजे I decided I cannot take further classes. रात में मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने उससे जब एक सवाल पूछा था ये और छुट्टी करूँगा नहीं उसने बोला कोई जरूरत नहीं तो लाइक अल्लाह का शुक्र है बैठा हूँ बट ये कि तबीयत डाउन है कि कोई वायरल अटैक हुआ है माय मेटाबॉलिज्म इज फाइटिंग विद इट इतनी ज्यादा बायो मुझे समझ नहीं आती माय वाइफ वाज नॉट विद मी सो शी कॉल्ड मी okay क्या बोला डॉक्टर आई स्टार्टेड विद आई हैव अ बैड न्यूज़ शी वाज लाइक व्हाट हैपेंड आई सेड I cannot have an off tomorrow. He was very angry. This is not how you report this. But so, in case if you have forgotten my name, this is Sir Pasha, and I'll be teaching you A-level physics. So, I don't exactly remember where we were, but as much as I remember, I think we have initiated, in fact, we are done with this discussion. Out velocities and displacements at different point of time. क्या हमने सी ग्राफ पढ़ी है? Two dimension में start कर रहे हैं. This is the last thing that we studied. Different point for velocities and displacement की values. है भाई? Yes. ये कर लिया था. First that was the last one that we. की बात है? We didn't use this, I think. Seriously? Seriously?
सारी क्लासेस में लाइक मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हमने इतना तो कर दिया था कि जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल एल्टीट्यूड पे वापस आया था उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी। इनफैक्ट बीच में भी किसी पॉइंट पर विच इज लाइक t इक्वल 6 सेकंड्स पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी एंड एवरीथिंग वो हमने डिटरमिन कर लिया था। अब एक छोटा सा पार्ट और है उसको भी कर लेते हैं which is calculate the vertical velocity and horizontal displacement of the ball when it is 20 meters below the starting point. कि भाई जब मेरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट पॉइंट से 20 मीटर्स नीचे आ चुका है उस वक्त उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है और उस वक्त उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है ये हमें डिटरमिन करना है। तो आई थिंक व्हाट आई कैन डू इज के पहले वर्टिकल मोशन स्टार्ट कर लेते हैं। उस वर्टिकल मोशन में जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज माय इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी व्हिच इज 34.6 meters per second. Acceleration has to be minus 9.8 meter per second square, that is again vertical acceleration. Displacement, because my object has gone 20 meters below the starting point. Yes, the screen is shared. Displacement is going to be minus 20. अगर किसी के पास लैग आ रहा तो वो प्लीज लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, that would be better. So what we can do is we can use simply s equal ut plus half at square to figure out the time taken by the ball to move 20 meters below the starting point. So vertical displacement is minus 20. Initial vertical velocity is 34.6. Accelerate t as it is plus 1 upon 2. Acceleration is minus 9.85 and then t square as it is. यहाँ पर अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I can figure out two values of time by solving this quadratic equation. One value of time is 7.6 and the other value of time is minus 0.54. So obviously I'm going to ignore the negative value of time that I'll get. And the positive value of time is 7.6, just consider kar lenge. So that turns out to be the fact that the object takes 7.6 seconds to finally move 20 meters below the starting point. So I don't think इसमें कुछ बहुत rocket science हमने लगाई है। हाँ, एक काम ये भी कर सकते हैं कि if it has taken 7.6 meters below the starting point, तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं v equal u plus at लगा के 7.6 seconds पर मेरे ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है वो मैं निकाल सकता हूँ by using v equal u plus at. So the initial vertical velocity is again 34.6, acceleration is minus 9.81 and time now I know as 7.6 seconds. I'll get the final vertical velocity as minus 40 meters per second. So when the object has gone 20 meters below the starting point, its vertical velocity is 40 meters per second and that is also downwards. Because answer हमारा negative आ रहा है तो we know negative का मतलब ये कि object downward move कर रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आ सकता है कि सर आपने इतना लंबा क्यों किया, लाइक यू वुड हैव डायरेक्टली यूज, अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ये तीन चीजें पता है ना, तो आई कैन यूज सिंपली E2as equal v square minus u square to find the final velocity. ठीक है, बिल्कुल मुझे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी मिल भी जाती, बट असल में मैंने फिर भी ये टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन से इसलिए निकाला है, उसकी वजह ये है कि मुझे इवेंचुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आगे गया, उसके लिए तो मुझे टाइम चाहिए ही होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले टाइम निकाल दिया ताकि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इफ आई अज्यूम हॉरिजॉन्टल मोशन तो दिस इज गोइंग टू बी s इक्वल vt, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस्तेमाल होगी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही मिल जाएगा। Horizontal velocity is 20, time is 7.6. I'll get the horizontal displacement as 152 meters, जिसको मैं यहाँ पर represent कर सकता हूँ in the drawing like this. तो ये इसकी पूरी मोशन का ना we have done the postmortem कि भाई different points पर ऑब्जेक्ट की velocities क्या है, horizontal क्या है, vertical क्या है, acceleration क्या है, displacement की values क्या है। तो अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि अब हम मजे से ना इसके ग्राफ्स पे डिस्कस कर सकते हैं। ग्राफ्स में आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा और
पहले मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा टू थिंक अबाउट इट, कि देखें, विजुअलाइज करें, और पहले बताएं आप में से कितने लोग हैं, क्योंकि द ग्राफ्स आर ऑल सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली। ठीक है, अरे यार किसी का मसला नहीं हल हो पा रहा है। हाँ माहिन, क्या वो आपने लीव करके ज्वाइन किया फिर भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? एक काम करो, जूम को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो। हाँ सही है, कभी कभी जूम का ग्लिच आता है, शायद देखो अपडेट वगैरह ना हुआ हो। Okay, sir, I'll fix it as soon as possible. थैंक यू। पाकिस्तान जो, वो एक ही कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करो, सही हो जाएगा। अच्छा भाई, सो अब आपके सामने ना मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन पे, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको सारी मोशन और फिर उसका ग्राफ नजर आएगा। सीरियसली हेल स्लो। तो आपके पास मैंने यहाँ पे 3 ग्राफ बनाए, एक वर्टिकल वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक वर्टिकल एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तीनों स्केचेस ऐसे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हो गया ना कि भाई हॉरिजॉन्टल मोशन भी आ गया, वर्टिकल मोशन दोनों आ गए, तो अब साथ में हॉरिजॉन्टल का ग्राफ भी बनेगा, बट वर्टिकल के ये तीनों स्केचेस से यू शुड बी फेमिलियर, यू नो, लाइक what we have studied previously. So everyone just spend 2-3 minutes on these graphs, like just look at the values and just tell me if you all agree with this or not. And if you agree with it, just write agreed on chat. आप लोग मुंह से ही बोल दो, चैट पे कैसे लिखोगे आप? पक्की बात है सारे? हाजिम नाम है ना तुम्हारा, हामिद? चलो इतनी अनसर्टेनिटी तो चलती है। चलो भाई, इंतजार कर रहा था कोई तो बोले कि सर एक बार समझा दे, ठीक है, वरना मैं खुद बोलता था मुझे समझ नहीं आया, दोबारा समझा रहा, ठीक है। सो यस एसन, कैन यू एक्सप्लेन? इसीलिए तो बैठे हुए हम, टेंशन ही नहीं है, अब समझाते हैं आपको। देखिए, पहले वर्टिकल वेलोसिटी की बात करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी के ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी का ग्रेडियंट वर्टिकल एक्सेलरेशन बताएगा, बिकॉज वर्टिकल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट -9.81, सो वर्टिकल वेलोसिटी का ग्रेडियंट भी कांस्टेंट, मतलब इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स भी काफी होते हैं, मैंने यहाँ पे फिर भी 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहले एट t = 0 योर वेलोसिटी इज 34.6, या पहला पॉइंट। फिर at t = 3.5 seconds your vertical velocity is 0, या दूसरा पॉइंट 3.5 पे वर्टिकल वेलोसिटी मैंने 0 दिखा दिया। और फिर एक आखिरी पॉइंट उठा लिया, at t = 7.6 seconds your vertical velocity is -40, तो मैंने ये लाइक 7.6 -40 पे पार्क किया, और इन तीनों को मिलाया तो खुद ब खुद they will form a straight line, because I should expect a straight line in case of the graph of vertical velocity. Asan and the rest जिनको कंफ्यूजन थी, आर यू ऑल क्लियर नाउ विद द ग्राफ ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम? वो जो ऊपर वाली जो ड्राइंग है ना, जिसमें आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्क कर लेते हो, उसके बाद तो ग्राफ इतना मजे का हो जाता है ना आपके लिए, लाइक प्रॉब्लम ही नहीं होती आपको ग्राफ बनाने। आसिम नहीं, ऐसा वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो वर्टिकल वेलोसिटी का बना रहे हैं। वर्टिकल वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी ना, तो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाऊंगा ना, उसमें बिल्कुल कांस्टेंट दिखाऊंगा। आसिम बेटा आप पूछ सकते हैं एक्चुअली, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर माइक फॉर अ मिनट जल्दी से?
इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, द प्लॉटिंग पार्ट और द स्केचिंग पार्ट? आसिम, द प्लॉटिंग पार्ट। भाई t इक्वल 0 पे आपकी वेलोसिटी 34.6, ये पहला पॉइंट समझ आता है आपको जो हमने प्लॉट किया हुआ है? ठीक। दूसरा पॉइंट ये, जब आप 3.5 सेकंड से पहुंचो तो यू आर एट मैक्सिमम हाइट, तो उस वक्त आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 3.5 सेकंड से मैंने वर्टिकल वेलोसिटी 0 दिखाई है। जल्दी यस और नो। आसिम, आई वुड अप्रिशिएट गुड रिस्पॉन्सेस प्लीज। और फिर फाइनली आखिरी जो मोशन थी ना, आखिरी पॉइंट जो था वो t इक्वल 7.6 सेकंड्स था, उस वक्त वेलोसिटी -40 थी। तो 7.6 पे वेलोसिटी -40 दिखा दी मैंने। और फिर चुप से मैंने इन 3 पॉइंट्स को मिला दिया, दिस, दिस एंड दिस। इजी। अच्छा, अब आते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। एट t इक्वल 0 the vertical displacement is 0 because this is where you started. At t equal 3.5 seconds, the vertical displacement is 61.2. तो आप देख सकते हैं 60.1, 61.2 मैंने दिखाया हुआ है t equal 3.5 seconds पे। At t equal, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स जिससे मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, बट आई वुड लव टू गो विद द एक्सट्रीम पॉइंट्स ओनली। At t equal 7 seconds पे आपका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो गया, बिकॉज वर्टिकली आप उसी एल्टीट्यूड पे वापस आ चुके हो। इसको जरा गौर से देखिएगा, ये 7 सेकंड से और ये 7.6 सेकंड से, 7.6 सेकंड्स पे आप स्टार्ट पॉइंट से 20 मीटर नीचे आ गए थे। नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। मतलब द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट वी हैव उसको यूज करके आप नहीं निकाल सकते। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, डिस्टेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर वो आपको उस पूरे कर्व की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और कर्व का पैरामीटर निकालना होगा। मेरा नहीं ख्याल कर्व का पैरामीटर निकालना तुम लोगों ने ओ लेवल या ए लेवल की मैथ से भी सीखा होगा, बट क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है भाई, अनस एहसान, जल्दी बाकी लोग कंफर्म करें। और फिर हमने इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। प्लॉटिंग में सबको क्लियर है? इन सबको कनेक्ट हमने वैसे ही किया भाई, थ्रू आउट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो मैंने ग्रेडियंट को कम होते हुए दिखा दिया। तो दिस इज हाउ द कर्व शुड लुक लाइक। ये बिल्कुल वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो हम पीछे कर चुके हैं, और उसके एक पास्ट पर भी हम कर चुके हैं। और आखिरी वाला सिंपल है, वर्टिकल एक्सेलरेशन आपकी थ्रू आउट -9.8 पर। तो वो बस ये है कि 7.6 सेकंड्स की मोशन थी, तो मैंने 7.6 सेकंड्स तक की आपकी वर्टिकल वेलोसिटी को -9.8 पर दिखाया। चले, अब अब जो अगला ग्राफ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना, दैट इज द ग्राफ फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का ग्राफ है।
Alright जी, तो I think हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का ग्राफ सबसे आसान है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट है विच इज 20, हर पॉइंट पे 20 है, यू नो। और हमने ये टॉपिक शुरू होते सबसे पहले चीज यही पढ़ी थी कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू आउट जीरो है, बिकॉज़ जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं हॉरिजॉन्टली। तो इसमें और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो बहुत सिंपल है। लाइक एट टी इक्वल 0 आपके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 था, और एट टी इक्वल 7.6 फाइनली आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था 150। निकालने को तो आप और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे निकाल सकते हो, लेकिन आई थिंक 2 पॉइंट काफी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट वेलोसिटी बताता है। अगर डिस्प्ले वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट निकालने के लिए मतलब स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, तो मैंने वो 2 पॉइंट्स पकड़ लिया, बहुत है। शहबाज नेगेटिव क्यों लेंगे हम? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली टू द राइट ही जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से पीछे जाता तो नेगेटिव लेता ना। ऑब्जेक्ट ऊपर जाए नीचे जाए हॉरिजॉन्टली तो वो आगे ही जा रहा है ना। वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में था ना, वर्टिकल में तो मैंने ले लिया था, हॉरिजॉन्टली तो वो आगे ही जा रहा है ना, पीछे थोड़ी जा रहा है। चलो मेरी क्लास खत्म हो जाए तो इसको सेंड करो ताकि 2 मिनट सेंड करने को अल्टरनेट रखा है। सही है जी। इफ यू आर ऑल क्लियर टिल नाउ तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि कुछ भी कर लो ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता, आगे ही जा रहा होता है। नेगेटिव क्या कम भी नहीं हो सकता, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज ही होगी कंटिन्यूअसली, वो डिक्रीज भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, आज अगेन कुछ नए बच्चे हमारी क्लास में ऐड ऑन हुए थे, तो फॉर दोस्त मोस्ट लाइकली उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, उन्होंने इस टॉपिक को पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, तो यू हैव टू कैच अप विद द रिकॉर्डिंग्स। ये बस काइनेमैटिक्स के आखिरी 1-2 लेक्चर से, फिर इंशाल्लाह विल हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स डायनामिक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जल्दी से। टेक आउट योर पेपर पेन पेंसिल जल्दी। ए बी सी डी। अच्छा देखो, इसमें लाइक कॉलेजेस में भी ना एक बड़ा कॉमन आंसर होता है, काफी लोग इसको ए लिख देते हैं जिसकी कोई तुक नहीं बनती है। देखिए, आपकी इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी है यू, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाओगे, तो एक हो जाएगा u cos अल्फा और एक हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। u cos अल्फा इज योर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, u sin अल्फा इज योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। पहले तो उसको क्लियर कर कि भाई आपने ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो किया है, फायर किया है, शूट किया है with an initial resultant velocity u, that is your initial resultant velocity। जैसे आपने उसको स्टार्ट पॉइंट पे उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, फेयर इनफ, एक u cos अल्फा u sin अल्फा, कॉमन प्रैक्टिस है। But all of these are initial horizontal velocity is u cos alpha, initial vertical velocity is u sin alpha, initial resultant velocity is u. But what they're asking you is not initial horizontal velocity or initial vertical velocity. They're asking you what are the vertical and horizontal components of its velocity after time t.
नॉट इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी। अगर वो इनिशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी पूछते ना, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर ए। मैं कहता हाँ भाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, शुगर स्पीड अच्छी हो गई है। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने एक बार निकाल दी ना तो वो चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा निकल गई ना, तो थ्रू आउट वो u cos अल्फा ही होगी। आफ्टर टाइम t हो, t1 हो, t2 हो, जिस भी टाइम के बाद हो, वो चेंज नहीं होती। हाँ, आफ्टर टाइम t अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है ना, सो फॉर वर्टिकल मोशन आप इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल u प्लस a t, यू नो, यानी u is initial vertical velocity, v is final vertical velocity after time t. I think this is what we are looking for. So initial vertical velocity was u sine alpha. This was your initial vertical velocity. Acceleration वैसे तो हम -9.81 लेते हैं, बट यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में चाहिए, तो हम gonna write -g और फिर t as it is. तो ये हो जाएगा u sine alpha minus gt. This is going to be my final vertical velocity after time t. So vertical velocity after time t is u sine alpha minus gt, and क्या कहते हैं, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u cos अल्फा ही रहेगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, आर यू ऑल विद मी? अच्छा, मैंने ये एसी बंद किया हुआ है, सिर्फ तबीयत मेरी सही नहीं है। अगर आप नो गर्मी लग रही तो आई कैन टर्न इट ऑन। इजी है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गो। हाँ भाई, क्या फैसला हुआ? बी अगेन आफ्टर टाइम टी। उस बार वेलोसिटीज पूछ लिया था, अब की बार डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियल प्रॉब्लम। सबसे पहले मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको उन्होंने v से रिप्रेजेंट किया, वो किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले उसके दो कंपोनेंट बना दिए ना, तो दिस इज गोइंग टू बी v cos थीटा, v sin थीटा। अगेन दिस इज योर इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? फिर ये करोगे कि भाई ठीक है, काम करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन अज्यूम कर ली। यू कैन डू एनीथिंग जो आप पहले करना चाहो। हॉरिजॉन्टल मोशन में देयर इज वन इक्वेशन दैट वी यूज व्हिच इज s इक्वल pt। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। योर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हियर रिप्रेजेंटेड एज x, तो मैंने भी x लिख दिया। योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज v cos थीटा, वो इनिशियल फाइनल के हर पॉइंट पे इस्तेमाल होती है। t as it is, so what we get is vt cos theta. This is my horizontal displacement covered after time t. मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती, सारे से लाइक इक्वेशंस और वेरिएबल्स की फॉर्म में आंसर आएंगे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स वर्टिकल मोशन, आई कैन यूज s इक्वल ut प्लस हाफ at square. So my vertical displacement here is y. Initial vertical velocity in this case is going to be v sin theta into t as it is plus 1 upon 2. Acceleration is minus gt square as it is. So I'll get is vt sine theta minus 1 upon 2 gt square. And the option that I have available for horizontal and vertical displacement is option B. Can I please get confirmation from the online community if you're all good till now? Are we good till now? अब अगले साहब लाल का ना गलत जवाब नहीं देना, वरना दिल टूट जाएगा। हाँ, वो मैंने पढ़ लिया। कब तक होगा वो ज्यादा
कौन सा मेरा वोल्टा यूज कर। हाँ भाई, क्या फैसला होगा? आई वांट आंसर फ्रॉम यू। चलो भाई, so let's begin our discussion on this question. So we threw our ball with the velocity v. इसका horizontal component was v cos alpha, vertical component was v sin alpha. Again, this is the initial resultant velocity, initial horizontal velocity, initial vertical velocity. What I'm looking for is an equation of height, okay, which is the vertical displacement covered when the object reaches the topmost point. So if I consider the vertical motion, my initial vertical velocity is going to be v sin alpha, and my final vertical velocity is going to be 0, because when the object reaches the maximum height, its vertical velocity is 0. I can use 2as equal v square minus u square. Acceleration is minus g. S is vertical displacement, which in this case is h, so I can write it as h. V is final vertical velocity, which is 0 in this case, which is 0 always when the object reaches the maximum point, minus initial vertical velocity is v sine alpha square as it is. So I'll be left with minus 2gh equal v sine alpha whole square. Negatives cancel हो जाएंगे और यहाँ से h की मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी as v sine alpha whole square over 2g. C is the correct option. कितने लोगों का सी आया था? दोबारा बता दूं? आपको चाहिए हाइट की इक्वेशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए, तो मैं वर्टिकल मोशन अज्यूम करके 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. दिस इज माय इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. ओके, जो भी आपकी वेलोसिटी उसका आपने y कंपोनेंट निकाला, दैट इज योर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, उस वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होती, वो तो उस वक्त भी वही रहेगी जो शुरू में थी, बट द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी गेट्स 0. सो मैंने फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी की जगह 0 लिख दिया और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की जगह मैंने v sin अल्फा लिख दिया. बाकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने सिंबॉलिकली h से रिप्रेजेंट किया. ये मुस्तकीम से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं s की जगह मुस्तकीम लिख देता, जो भी होगा लाइक मैं उसकी जगह वो वेरिएबल पुट करता. फिर मैंने h को सब्जेक्ट बनाया नेक्स्ट. फिट सीन है. मैं प्लीज गेट अ क्विक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी, ताकि एक नई चीज जो मैं डिस्कस कर सकूं. We have nearly 20 participants. I would appreciate acknowledgement from everyone, please. Quick. अब इधर आते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, which is when a projectile is launched horizontally. लेकिन जब आप किसी चीज को लॉन्च ही हॉरिजॉन्टली करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऑब्जेक्ट जिंदगी भर हॉरिजॉन्टली जाता रहता है. rather what it does is it follows a trajectory like this, because ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट कर रहा होता है, तो वो कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल ले नहीं सकता, बल्कि वो नीचे आना शुरू हो जाता है. अब है तो बहरहाल ये भी प्रोजेक्टाइल ही मोशन, बिकॉज थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट पर सिवाय उसके वेट के और कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं करती. इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है. पहली चीज तो ये कि for any projectile motion, your initial vertical velocity is 0 if the projectile is launched horizontally. That makes sense. बड़ा लॉजिकल है. अगर एक चीज को आपने फेंका ही हॉरिजॉन्टल है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसे हो सकती है? जिस पॉइंट पर आपने उसको फेंका ही हॉरिजॉन्टल था, उस वक्त उसकी जो भी वेलोसिटी थी ना, वो सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो at the beginning, जो आपकी resultant velocity, that is your horizontal velocity, because there is no vertical velocity in the object.
हमने वेक्टर से पढ़ा था, if a force acts on x axis, its y component is 0. If a force acts on y axis, its x component is 0. समझ रहे हो आप मेरी बात? So your initial vertical velocity is 0 because the object is launched horizontally. Now इसमें initial का लफ्ज बड़ा important है. ऐसा नहीं कि हमेशा vertical velocity 0 ही रहेगी. Right at the point when you threw the object, जब आपने object को फेंका था ना, उस वक्त आपने फेंका ही horizontal था. तो उस वक्त सिर्फ उस समय जब आपने उसको horizontally throw किया था, उस वक्त उसकी कोई vertical velocity नहीं. तो इसलिए हम कहते हैं initial vertical velocity 0. But right after the ball was released और object motion करना शुरू करता है क्योंकि उसके ऊपर continuously force act कर रही होती है, weight act कर रही होती है. तो उसके अंदर एक वर्टिकल एक्सेलरेशन आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल वेलोसिटी आना शुरू हो जाएगी. इनफैक्ट बिल्कुल अनस, बिल्कुल ऐसा ही है. अगर आप देखना चाहो ना तो ये बिल्कुल वही सिनारियो जिसको बहुत से किताब कहती है हाफ प्रोजेक्टाइल. यानी यूं समझ लो ये आपकी वो मोशन है जो मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट हो रही है, जो पीछे मैंने कराया था. अगर आप उसको ऐसे अज्यूम कर लो कि वो मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल आपको यही चीज नजर आना शुरू हो जाएगी. तो बस दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन हॉल. अब तक हमने जितने भी एग्जांपल किए ना उसमें हम ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ फेंक रहे थे, एंगल ऑफ 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज. तो हम इमीडिएटली राइट आफ्टर द बॉल वाज रिलीज हम उसके दो कंपोनेंट बनाते थे. हम कहते थे ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कि यूजुअली cos अल्फा से निकलता था, और जो sin अल्फा से निकलता था हम कहते थे वो वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. यहाँ पर your initial resultant velocity is equal to its horizontal velocity, and that is very logical because object को फेंका ही horizontally किया. So you should not expect any vertical component at least when the object's motion started. So this is how it looks like. Let's say you are throwing an object from the top of a building in the horizontal direction. Let's say that speed is, or that velocity is 15 meters per second. So the object is not going to move horizontally throughout, rather the object is going to cover a trajectory like this. Now during the course of its half projectile motion, or during the course of its motion, initially जो उसकी horizontal velocity है वो उसकी resultant velocity है. हाँ, right at the beginning इसकी vertical velocity जिसको हम usually vy से represent करते हैं, that is 0. But that vertical velocity is 0 right at the beginning. थोड़ा सा आप आगे जाओगे ना, the object will have a different value of resultant velocity. हाँ वो अलग बात है because हमने कसम खाया हुआ है कि the horizontal velocity never changes. So this holds true even for half projectile. In fact, for any projectile motion, as long as there is no resistive forces acting on the system, the horizontal velocity will be same. जैसे इस केस में अगर 15 मीटर पर सेकंड तो वो throughout 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. Yes, after any point other than the start point, आप vertical velocity निकालेंगे, you will have some values of vertical velocity, which can be obviously calculated by using the equation of motion. So horizontal velocity is again 15 meters per second, whereas the vertical velocity just keeps increasing in the downward direction. तो ये एक बहुत ही कोई बेसिक सी चीज थी जो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आपको रिकॉल कराया जाए बिफोर वी मूव ऑन टू टुवर्ड्स डिस्कसिंग मोर पासिव क्वेश्चंस. हाँ, एक्सेलरेशन का तो वही रूल है ना. वर्टिकल एक्सेलरेशन इज -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0 because there is no change in velocity in the horizontal direction. Okay, so this is one of the passive horizontal velocity. इस वक्त ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? इस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी. और the object has gone 8 meters below the starting point. No, object start point से 8 मीटर नीचे जा चुका है. So if I assume vertical motion, my initial vertical velocity is 0 because the object has been thrown horizontally. My vertical acceleration always -9.81 meters per second square. And the displacement को मुझे बताएगा how much should I check displacement? It should be taken as -8. Vertical displacement is 8, but the object has gone 8 meters below the starting point, so I'm going to take the vertical displacement as -8. Then I'm going to use s equal ut plus half at square ताकि मैं टाइम निकाल सकूं क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है. So I think this is the most appropriate equation to go with. Your initial vertical velocity is 0. Time is something that I need to figure out. Plus 1/2. Vertical acceleration is -9.81. Vertical displacement की जगह मैंने already -8 put कर दिया. T square as it is. यहाँ से all I have to do is to find T.
and I'll get the value of t as 1.3 seconds. So C is the correct option. Are we all good till now? Oh no. Yeah. A cyclist pedals along a raised horizontal track at the end of a track. He travels horizontally into the air and onto the track that is vertically 2 meters below. ये बड़ा frequently asked question है. मतलब वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं, बट ये बहुत पूछा जाता है ए लेवल्स में भी, यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में भी, कि भाई एक बंदा था वो हॉरिजॉन्टली चलते चलते आता है और फिर इस तरह से लाइक फ्लाई करते हुए जमीन पे चला जाता है, which is a pure projectile motion. कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती ऑब्जेक्ट के ऊपर. वर्टिकली ऑब्जेक्ट ने 2 मीटर और हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक है. And what I need to calculate is the horizontal velocity of the projectile, which is not given in the question. पिछले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि किस horizontal velocity से निकला है. अब की बार मुझे निकालना है horizontal velocity. I think हमें पता होना चाहिए horizontal motion is the easiest to deal with. Horizontal velocity is simply horizontal displacement over time. Distance upon time से निकाल लो. But the only irony is I don't know the time. कितनी देर बाद ऑब्जेक्ट जमीन पे गया है ना, मुझे नहीं पता है. तो मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वर्टिकल वेलोसिटी से दोस्ती करनी पड़ेगी. तो पहले मैं वर्टिकल मोशन को यूज करके ना ऑब्जेक्ट के नीचे जाने का टाइम निकाल लेता हूँ. जैसे अभी मैंने पीछे निकाला था, उस वक्त मैं 8 मीटर नीचे जाने का टाइम निकाला था, अब मैं 2 मीटर नीचे जाने का टाइम निकाल लेता हूँ. My equation is going to be still वही s equal ut plus half at square. My vertical displacement is minus 2.0. Initial vertical velocity is 0 because when the object started motion horizontally, its initial vertical velocity was 0. I don't know the time. In fact, time की तो नहीं आती मेरी निकालने की. Plus 1/2 acceleration is minus 9.81 and then t square as it is. Minus 2 is equals to minus 4.905 t square. यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 0.64 seconds. अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव 2 meters बिलो द स्टार्टिंग. यही है ना भाई, s equal ut plus half at square में ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्लेसमेंट -2 लिया था बिकॉज़ द ऑब्जेक्ट हैज गॉन 2 meters बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट. बट माइंड यू, ऑब्जेक्ट जितनी देर में 2 मीटर नीचे गया उतनी देर में 6 मीटर भी आगे गया. दिस इज व्हाट हैपेंस ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन दोनों साथ साथ ही हो रही होती है ना. तो बाय कैलकुलेशन वैसे तो मैंने निकाला है द टाइम टेकन बाय this motorcycle or this cycle to reach the ground 2 meters below the start point, but it's actually the same time in which the object has moved 6 meters in the horizontal direction. समझ रहे हो आप मेरी बात? जितनी देर, हमेशा याद रखना, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, टाइम आपको पता नहीं होता. तो आप क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन से नीचे आने का टाइम निकालते हैं. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जितनी देर में ये 2 मीटर नीचे आया उतनी देर में ये 6 मीटर आगे गया ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं मूव कर रहा है कि पहले यूं आ रहा है फिर यूं जा रहा है. ऑब्जेक्ट एक्चुअली यूं मूव कर रहा है. ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम वर्टिकली नीचे भी आ रहा है और एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टली आगे भी जा रहा है. जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था दैट वाज t इक्वल 0. जब वो जमीन पर पहुंचेगा ना दैट वुड बी t इक्वल 0.64 सेकंड्स. ये वो टाइम होगा जिसमें ऑब्जेक्ट वर्टिकली 2 मीटर नीचे और हॉरिजॉन्टली 6 मीटर आगे जा चुका होगा. So what I can do is कि हाँ अब चाहिए ना horizontal velocity, चाहिए तो यही था. horizontal displacement तो इतना बड़ा नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर्स का कवर किया. टाइम कितना है? 0.64, and that would lead us to an answer of 9.4 meters per second, and B is the correct option. बोलो नो, मैं जीत रहे आज. 54 फकर पाकिस्तानी के. यार असल में हम इतने बेशरम हो चुके हैं ना कि हमें पता है वर्ल्ड कप से बाहर है, फिर भी हम देख रहे होते हैं. जरा सा पता लग जाए ना, 2 घंटे गिर गए फौरन एक्टिव हो जाते हैं. चलो चलो अच्छा खेल रहे. चलो, इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रखता हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है. सही. ये सी व्यू पे कराची के शफाटर बॉयज साइलेंसर निकाल के 13 अगस्त की रात को
1.25 मीटर की हाइट से विलियम मार रहे हैं, ठीक है, और जैसे छलांग लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टली माशाल्लाह पूरे 10 मीटर आगे जाते हैं, सही है। तो जस्ट फॉर योर, अगर किसी भी लड़के को लगता है ना कि ऐसा करने से वहां पे खड़ी हुई खवातीन आपको देख के इंप्रेस हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिल में सिवाय गालियों के और कुछ नहीं निकलती होती, ठीक है। तो अगर कोई करता है तो ऐसी हरकतें ना करे, और जल्दी से काम करो, टेक ऑफ स्पीड निकाल दो, यानी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दो। हो गया, जल्दी भाई जल्दी। सर मेरा एक सवाल है। पूछे भाई पूछे। सर जो आपने कहा कि अगर बॉल को हम दरमियान में हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो उसकी अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन उसमें पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉल आपकी वेट के साथ ही फॉल कर रही है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो हम उसको 9.81 पॉजिटिव नहीं करेंगे, बॉल जो नीचे से पूरी ऊपर से थ्रो होगी उसके अंदर नेगेटिव हो एक्सेलरेशन। यार तुमने सवाल शुरू बड़ा अच्छा किया था, पर तुम आई थिंक थोड़ा आउट हो गई, दोबारा से रिपीट करो क्वेश्चन, मैं जरा ठहर ठहर के सुनता हूं। कि जो हम एक बॉल को, आपने कहा कि अगर हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो उसके ठीक है, अंदर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वेट के अंदर मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर फॉल करिए और वो इनिशियल वेलोसिटी के भी अगेंस्ट देंगे, तो उसको पॉजिटिव होना नहीं चाहिए नहीं, था। देखिए और देखिए एक जो चीज हम को समझ लो, देखिए मैं एक पहले मुझे जरा इसका आंसर देने दें आपको, ठीक है। देखिए आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ना पॉजिटिव या नेगेटिव जो लेते हैं वो इस बेस पर लेते हैं कि पहले आप साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं कि आप विच साइन कन्वेंशन यू आर फॉलोइंग। जैसे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए ना उसमें मैंने बस ये साइन कन्वेंशन फॉलो किया है कि एवरीथिंग दैट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव एंड एवरीथिंग दैट इज अपवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा सिंपल साइन कन्वेंशन है, ठीक है। अब टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, जब मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है और वो नीचे आ रहा होता है तो थ्रू आउट इस पर वेट ऐड कर रहा होता है डाउनवर्ड। जब इस पे वेट ऐड कर रहा होता है डाउनवर्ड तो इस पे एक्सेलरेशन भी होती है डाउनवर्ड, एंड ऑल दैट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव, इसलिए मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव ही लेता हूं। फिर अगर ऑब्जेक्ट हमारा, वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में इससे कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं निकलती, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकलती है फोर्स की डायरेक्शन से। वो डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। आपने डाउनवर्ड नेगेटिव लिया हुआ है इसलिए हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया। तो सर अगर हम इसी तरह बॉल थ्रो करें तो उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, अगर बॉल नीचे गिर गई तो वो नेगेटिव होगा। थ्रू आउट नेगेटिव होगा, थ्रू आउट और नेगेटिव जब होगा। पहले हमने बॉल ऊपर थ्रो की है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, बाद में नेगेटिव होगा। हाँ, जब तक जब कि वो वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच जाता ना, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का पॉजिटिव है। सीन ऑन है भाई, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए तुम लोगों का। देखो अगेन बिल्कुल वही काम हमें दोबारा रिपीट करना है। पहले हम वर्टिकल मोशन अज्यूम करेंगे, वर्टिकल मोशन से हम नीचे आने का टाइम निकालेंगे, s इक्वल ut प्लस हाफ ad स्क्वायर लगाएंगे। The object has gone 1.25 meters below the starting point. I'll take displacement as minus 1.25. My initial vertical velocity, जब ऑब्जेक्ट लॉन्च ही हॉरिजॉन्टली हुआ तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। t as it is 1/2, vertical acceleration is minus 9.81 and t square as it is। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू निकाल दूंगा, that value of t turns out to be 0.505 seconds। तो 0.505 सेकेंड्स बाद मेरा ऑब्जेक्ट अपने स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पर पहुंच चुका है। 0.505 सेकेंड्स एक्चुअली वो टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट ने ना सिर्फ वर्टिकली 1.25 मीटर्स का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टली 10 मीटर्स का फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया है। और यही वो फसाद की जड़ थी जिसकी हमें तलाश थी कि अगर हमें टाइम मिल जाए ना हॉरिजॉन्टल मोशन का, कि भाई इसको जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो खुला नजर आ रहा है यहाँ पे 10 मीटर। Time is 0.505 and that will lead us to an answer of 19.8 which can be rounded off to 20 meters per second.
ये वो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और यही आपकी इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि शुरू में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वही आपकी इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है। क्या नाउ यहाँ तक सर, आपका? जी जी बोले। सर अब ये अभी बाइक जब नीचे आएगा तो हम इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव लेंगे? नहीं, हॉरिजॉन्टल देखिए, पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। एज सून एज इट टचेस द ग्राउंड कांटेक्ट फोर्स आ जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगी। जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का साइन कन्वेंशन यूं समझ ले, एवरीथिंग दैट इज टू द राइट इज पॉजिटिव, एवरीथिंग दैट इज टू द लेफ्ट इज नेगेटिव। तो आपका ऑब्जेक्ट जा रहा भी राइट है, डिस्प्लेसमेंट भी टू द राइट ही, इसलिए हॉरिजॉन्टल में हर चीज पॉजिटिव है। हॉरिजॉन्टल में साइन कन्वेंशन को तब एक्सप्लेन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही साइन है, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्सेलरेशन सबकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो ये कि बस ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने बीच में स्किप किया था, अभी ट्राई कर लेते हैं, जरा इसको सॉल्व कीजिएगा। नवाजुद्दीन अपनी मूवी में कहता है ना, चांद पर है अपुन, ये बिल्कुल वही है। आप चांद पे जा चुके हैं, चांद पे जाने से फिजिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, विद द ओनली डिफरेंस इज कि मून के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, व्हिच इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं है। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को इनिशियली फेंका गया, किस रिजल्टेंट वेलोसिटी से फेंका गया ये नहीं दिया हुआ, बट एग्जामिनर इज जेनरस इनफ कि उसने आपको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों ही दिया हुआ है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। सही है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे निकालना है इट्स स्पीड आफ्टर 9 सेकेंड्स। याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था क्लास में, अगर सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ स्पीड निकालने बोले प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उसका मतलब होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी। यानी 9 सेकंड्स के बाद आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल ली है और वर्टिकल भी निकाल ली है। मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, वो 4 मीटर्स पर सेकंड है, वो थ्रू आउट 4 ही रहेगी, क्योंकि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंजेस। 9 सेकंड्स के बाद आप वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लें और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, गेट सेट गो। पीक फिन सुपर, ये तो जितने हमने छक्के चौके नहीं देखे उतने तो हमने ऐड देखा है। एक और का लेवल ही है। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, आपकी किसी बंदे से हट रही हो ना और वो बार बार आपके मुंह पे आ रहा हो, आपकी और हटना शुरू हो जाती है। तो एक तो बॉबी भाई बेचारे आजकल आउट हो जा रहे हैं जल्दी, और फिर हर थोड़ी देर पे ऐड में आके बोल रहे हैं लेवल ही और है पेंथर टाइम का। अच्छे भले ना साफ सुथरे बंदे की भी हट जाएंगे, यार क्या है यार, हटाओ इसको यहाँ से। बॉबी भी सोच रहा है इतना हिट क्यों मिल रहा है मुझे। किंग है किंग, किंग देख लेगा किंग। बॉक्सी है बॉक्सी। हाँ भाई, क्या फैसला हुआ? बी फॉर बांग्लादेश।
भाई this is your initial vertical velocity, this is your initial horizontal velocity. horizontal के आगे मैं initial नहीं लिखता हूँ क्योंकि तौहीन है ये, मुझे पता है horizontal velocity हर लम्हे सेम ही होती है ना। पहले वर्टिकल मोशन को यूज करके फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v equal u plus at. My initial vertical velocity is 8 meters per second plus acceleration is minus 9.81 की आदत है, लेकिन यहाँ पे जरा देख लीजिएगा चांद पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है, तो हमारी एक्सेलरेशन माइनस 1.62 हो जाएगी, ठीक है, और टाइम इज 9.00, दैट गिव्स मी अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ माइनस 6.58 meters per second, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि 9 सेकंड से मेरे ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो चुकी है। बट मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा ना तो वैसे भी नेगेटिव साइन भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही हो जाता है, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत भी नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। दिस इज हाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम to find the resultant velocity, and that is 7.7 meters per second. So B is the correct option. बोलो ना। Shava, do you understand why B is the correct option? अच्छा, आज की तारीख में मैं आपको इस बात का वो क्या कहते हैं खुला लाइसेंस देता हूँ कि जाओ और काइनेमैटिक्स के क्वेश्चंस को चुन चुन के मारो, सही है, एक क्वेश्चन भी बचने ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली वेंसडे को मेरा प्लान है आप लोगों का एएस के काइनेमैटिक्स का टेस्ट लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये पूरा वीकेंड होगा आपके पास, तब आके प्रैक्टिस करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शोर मचाएं, एक दूसरे से क्वेश्चंस करें, अपने आंसर डिस्कस करें, बट अब आपसे काइनेमैटिक्स के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है, तो उनको फुल थ्रॉटल पे सॉल्व करें। जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मुझे ऐसी एक जगह नजर आ गया था, पसंद आया, सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपके आगे रखूंगा। टेनिस बॉल समझते हो ना, टेनिस की सर्विंग होती है ना, सर्विस जो करते हैं, टेनिस बॉल को सर्व किया गया 30 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फ्रॉम अ हाइट ऑफ कितना 2.4 मीटर्स, ठीक है। 12 मीटर हॉरिजॉन्टली आगे जाके एक नेट है जिसकी अपनी हाइट है 0.9 मीटर्स। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि ये टेनिस बॉल यूं भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है, यानी नेट के ऊपर से भी जा सकती है, नेट को हिट भी कर सकती है। तो मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ, थोड़ी सी काइनेमैटिक्स लगा के ये जानना चाहता हूँ कि विल द बॉल क्लियर द नेट और नॉट। घर पे ट्राई कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 मिनट ज्यादा लगेंगे नहीं, बट आई वांट यू गाइस टू ट्राई दिस आउट फर्स्ट। बड़ी आसानी से आप कंक्लूड कर लेंगे कि ये बॉल आपके नेट से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। कल से इंशाल्लाह हम हमारी जिंदगी का हसीन लम्हा शुरू हो जाएगा, यानी कल से डायनामिक्स इज एक्चुअल फिजिक्स, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो थोड़ी बोरिंग पार्ट था जिसमें इक्वेशंस और ये और वो। डायनामिक्स अब वो लेवल है कि अब आपको चारों तरफ फिजिक्स नजर आएगी, सही है। आज सुबह मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उठा, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं दवाई खा के सो गया और मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की दिन के 2 बजे से। जब मैं सोया तो मैंने पूरी पूरी नींद में कंटिन्यूअसली ख्वाब में लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया। इतना गुस्सा आया ना जब मैं सो के उठा, मैंने कहा ये कोई फायदा हुआ छुट्टी करने का, मतलब ख्वाब में मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकलवा रहा हूँ, वर्टिकल वेलोसिटी निकलवा रहा हूँ, इतना ऑफ लगा यार मुझे उठ के, मैंने बोला यार चलो खैर। सो दिस इज योर होमवर्क गाइस, एंड हमने अब तक बेस यूनिट्स कर लिया है, काइनेमैटिक्स कर लिया है, मेजरमेंट्स कर लिया है और वेक्टर्स कर लिया है, ठीक है। हट पड़े, इनके क्वेश्चंस को दबा के सॉल्व करें और बस टारगेट रख लें काइनेमैटिक्स के टेस्ट में सरपाशा को रिस्क कर देना है, मतलब इम्प्रेस कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज।